ناظرین آپ کو براہ راست لے جاتے ہیں۔ اس وقت وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری تمام تر جو ان کی جعلی جو کورز تھے، قوم پرست ہونے کا یا سیاسی ہونے کا یا حقوق کی جنگ ہونے کا، وہ سارے کا سارا جو ہے ختم ہو گیا، اور ایک جرائم پیشہ لوگوں کی تحریک جو ہے اس نے جنم لے لیا، یا اس میں یہ ساری کنورٹ ہو گئی۔ یہ بیسیکلی لاس آف بزنس ہے۔ یہ کاروباری نقصانات کو ریکور کرنے کے لیے وہاں پہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ جناب والا، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ جو نیٹ ورک آف کرپشن جو ہے، ایران سے اجازت نامے کے اوپر جو ہے 60 روپے لیٹر کا تیل، 40 روپے لیٹر کا تیل جو ہے وہ 200 روپے لیٹر کا جو ہے کراچی میں بیچ رہے ہیں۔ 4 ارب روپیہ ڈیلی منافع یہ لوگ کما رہے ہیں جو اس وقت جو ہے تحریک چلا رہے ہیں، جس کو اس کو فنڈ کر رہے ہیں۔ 4 ارب روپیہ ڈیلی جو ہے صرف تیل سمگلنگ سے، جس کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں ان کے دم کے اوپر پیر آیا ہے، اور یہ سارا کچھ وہاں پہ جو امن و امان جو ہے برباد ہوا ہے، اس کی مین وجہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ ایک نیکسس بن گیا ہے، وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ جو ٹرائبل لیڈرشپ ہے اور کرمنل ایلیمنٹس کا، یہ ایک نیکسس بن کے اس ساری تحریک کو، جو اس کا کلیم کوئی اور تھا لیکن مقصد کوئی اس وقت اور بن گیا۔ اور بی ایل اے اس کو بجائے کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نام پہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے اس کو پروٹیکشن پرووائیڈ کر رہے ہیں اسمگلنگ کو، اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی بشمول فوج کے ان کے خلاف جو ہے برسرے پیکار ہے۔ جناب اعلیٰ، میں ایک یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو جغرافی ہے بلوچستان کی، وہ پاکستان کا اوور 40% رقبہ جو ہے بلوچستان میں، اور اس میں 35 کلومیٹر پہ ایک شخص رہتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا کسی آبادی والے شہر یا آبادی والے خطے سے کہیں زیادہ جو ہے مشکل ہے، اور وہاں پہ میسو قسم کی فورسز کی ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہماری فورسز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں، ان کے خلاف برسرے پیکار ہیں، لیکن اتنے بڑے علاقے کو گارڈ کرنا، پٹرول کرنا ایک بڑے فزیکلی جو ہے وہ ہینڈی کیپڈ ہے۔ وہاں پہ مختلف حکومتوں کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں پہ جو سرکاری وسائل سے ہمارے یہاں پہ بلوچستان کے ممبران جو ہیں میری اس بات کو جو ہے انڈورس کریں گے کہ جتنا سرکاری وسائل اور خصوصاً وہاں پہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جاتے تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، شاید ہی کسی اور صوبے میں اتنی مثال ملتی ہو۔ تمام صوبوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن بلوچستان میں جو کچھ ہوا کہ اس وقت بھی مجھے فگرز جو ہیں اس وقت میرے پاس اویلیبل نہیں ہیں، لیکن آف دی کف جو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ 1 ٹریلین جو ہے سے اوپر وہاں پہ پی ایس ڈی پی سے دیا گیا ہے، ویئر ایز پنجاب کو 170 بلین دیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی صوبوں کو بھی
कम दिया गया है और बलूचिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए वहां पे ज़्यादा दिया गया है। जो इस वक्त पिछले 2 दिन के अंदर, परसों और उसके बाद तरसों जो है, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स जो है आप बताता हूं। जिस तरह आपने फरमाया कि टेररिस्ट 177 जो है मारे गए, हमारे जो शहीद हुए हैं 17, जिसमें 10 पुलिस वाले हैं, 6 एफसी के हैं और 1 लेवीज का है। सिविलियन शहीद जो है मेनली ग्वादर में हुए हैं, वो 33 हैं। इस वक्त पॉपुलेशन जो है अल्लाहु अकबर अल्लाह। वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल जारी है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायती याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय हिमायती याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायती याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायती याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं और उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली इजलास से इज़हार ख़याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायती याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय हिमायती याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इजलास से इज़हार ख़याल कर रहे हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान में 177 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है और बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि बलूचिस्तान में 177 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं और उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और मज़ीद बोले कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में 177 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ मौजूद हैं और कहा कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत सख्त इक़दाम कर रही है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। यह कहना था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में 177 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इजलास से इज़हार ख़याल कर रहे हैं।